Hello everyone and welcome back to Solve Sphere. So today I am going to solve O-level mathematics syllabus D October-November 2024 paper 1 variant 2. So let's begin with our paper. Now, question 1. Remember that electronic calculators are not allowed in this paper. Okay, we all know that. Now, question 1. Write 43.07862 correct to 3 decimal places. This is a very simple question. Correct to 3 decimal places means first, second and third. We have to round this one uh, and let's check the number after this. It's 6. 6 is greater than 5. Hence 8 would round off to 9. So this becomes 43.079. Let me just copy it down in the answer box. 43.079 is our answer for the first question. Question 2. At midnight, the temperature is minus 7 degrees Celsius. At 11 am, the next day, the temperature is 12 degrees Celsius. Find the increase in temperature from midnight to 11 am. That's again a very simple question. We know that the formula for calculating the temperature change is final temperature minus initial temperature. Now the value of final temperature is 12 degrees Celsius and the value of initial temperature is minus 7 degrees Celsius. Minus minus becomes plus, so this becomes 12 plus 7, which is equals to 19 degrees Celsius. So the correct answer is 19. Now let's move on to the next one. Question 3. Write these numbers in order of size starting with the smallest. अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले अपनी सारी वैल्यूज़ को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद डिसाइड कर लें उस बेसिस पे कि कौन सी स्मॉलेस्ट और कौन सी लार्जेस्ट, क्योंकि इससे वर्किंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आपको आइडिया होता है विच डेसिमल प्लेस इज़ द स्मॉलेस्ट विच इज़ द लार्जेस्ट. ओके, तो मैं इसी मेथड को फॉलो करूँगा. फर्स्ट आई विल कन्वर्ट 2/3 टू इन डेसिमल्स. So 2 comes inside, 3 outside, and we cannot just divide it. तो मैं यहाँ पे एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस कराऊंगा, 0 point something. So this becomes 20. 3 6 is 18. So this becomes 18. 20 minus 18 is 2. Again a 0 comes here. 3 again 6 is 18. So 2 is left again, and this chain continues. So this is 0.6667. Okay, now 66%. 66% is basically 66 over 100, that is 0.66. Third one is fairly simple, 0.6. Now 16 over 25. Let's calculate it again. इसके decimals निकाल लेते हैं. तो 16 under 25 are 0 point. So this becomes 150, and 25 6 150. I subtracted, तो मेरे पास बचा 10, और मैंने एक और ज़ीरो इंट्रोड्यूस कराया. 25 4 25 4 यस, दैट्स 100. तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 0. सो दिस इज़ 0.64 एंड दिस इज़ 0.606. नाउ आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक चीज़ क्लियरली लिख दिया है मैंने. अब मुझे पता है कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट. तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट है 0.606. ओके, दिस वैल्यू, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी. सबसे स्मॉलेस्ट है 0.6 बिकॉज दिस इज़ 0.60. okay, 000 continues, but here ये है 0.606. so take care of that. The smallest value becomes 0.6, after that 0.606, and after that 0.64. लेकिन अब एक यहाँ पे ख्याल रखना है आपने, इसके 0.64 डायरेक्ट नहीं लिखना. 0.64 की एक्चुअल वैल्यू है 16/25. so this is 16/25. The fourth one is, now अब 66% है, 0.66 and 0.0000 continues, but 2/3 में it's a long lasting chain of 0.6666 again and again. so eventually ये smaller है और ये largest value है. तो this is 66%, and the last one is 2/3. okay, now let's move on to the next question. Now question 4. Simplify t raised to power 4 multiply by t raised to power 3 divided by t raised to power 10. अब ये एक सिंपल क्वेश्चन इंडाइसिस का, इस जिसमें इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, दैट इज़ a रेज टू पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n. तो जब दो बेसिस सेम होती हैं और डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो बेस सिंगल बन जाती है एंड द पावर्स ऐड. सही है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. t रेज टू पावर ऑफ 4 इज़ मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू पावर 3. हैंस t जो है वो एक सिंगल पावर बन जाएगी, दैट इज़
4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय टी रेज टू पावर ऑफ 10, तो ये बन जाएगा टी रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय टी रेज टू पावर ऑफ 10। अब यहाँ पे क्या होगा कि टी रेज टू पावर ऑफ 10 विल मूव अपवर्ड्स, जिसकी वजह से ये पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस बिकम्स टी रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू पावर -10। अगेन दो सेम बेसिस वाली सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स अगेन ऐड हो जाएंगी। सो वी वुड ओनली बी लेफ्ट विथ -10 + 7, तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर -3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t³। ओके, सो द ऑप्शन इज़ योर्स, जो भी आप आंसर्स में लिख दें, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 4 एंड दिस इज़ वेरी सिंपल अगेन। √6 होल थिंग स्क्वायर्ड, तो स्क्वायर रूट से हमारे पास √6 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो वी वुड ओनली बी लेफ्ट विथ 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन 5। A group of people are asked what type of holiday they prefer. The table gives the information about the results. Complete the table. अच्छा, अब ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करूँगा, और जो कि हम एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो द फार्मूला स्टेट्स दैट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, विच इज़ आर वैल्यू, दैट इज़ द नंबर ऑफ पीपल, डिवाइडेड बाय the total number of people and multiplied by total angle of the pie chart, that is a circle, so it is 360। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका टोटल निकाल लेते हैं कि इन सब का टोटल मिला के कितना बन रहा है। दैट बिकम्स 20 + 30 by 20 + 10, दैट बिकम्स 30, 45 + 15, so this becomes 60, and 60 + 30, this whole thing is equals to 90। ओके, अब हमें पाई चार्ट्स के एंगल निकालने हैं, तो एक एक करके मैं वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले पुट करूँगा और मेरे पास एंगल्स आ जाएंगे। नाउ 45 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले 45 1 से 45 एंड 2 से 90, और 2 1 से 2 एंड 2 180 से 360, तो मेरे पास जो पहला आंसर आ रहा है फॉर 45, दैट इज़ 180 डिग्रीज। ओके, सो इस फार्मूले से हमारे लिए चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई हैं, एंड वील यूज़ दिस थ्रू आउट द टेबल। नाउ अगला हमारे पास एंगल है, और अगला वैल्यू है हमारे पास है 20, तो ये जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, सो दिस बिकम्स 90 1 से 90 एंड 4 से 360। ओके, अब हमारे पास जो है 20 × 4, सो दैट इज़ 80, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई 80 डिग्रीज। नाउ वर्किंग फॉर द थर्ड वैल्यू, दिस इज़ वेरी सिंपल, ये हो जाएगा 10/90 मल्टीप्लाई बाय 360, सो 90 1 से 90 अगेन, 4 से 360, 4 10 से 40, तो हमारे पास लास्ट एंगल आ गया 40 डिग्रीज। अगर आप इन सब एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल सम आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 360। ओके, इसका मतलब हमने अपने टेबल परफेक्टली कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। अब मैं एक बार सारे एंगल्स यहाँ पे लिस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास बीच का एंगल था 180 डिग्रीज, उसके बाद मेरे पास क्रूज़ का एंगल था 80 डिग्रीज, और उसके बाद मेरे पास हाइकिंग का एंगल था 40 डिग्रीज। बीच का एंगल 180 डिग्रीज होने का मतलब है कि हमारे पास हाफ जो सर्कल का सेक्शन होगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द बीच। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करूँगा, सो दिस इज माई स्ट्रेट लाइन, और अब 180 जो कि हाफ ऑफ द सर्कल है दैट वुड रिप्रेजेंट बीच, सो आई वुड राइट हेयर बीच एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 180 डिग्रीज। ओके, तो सबसे पहले ये तो बहुत सिंपल था। नाउ अब मेरे पास बचे टोटल, ये पूरी मेरी साइड 180 के बराबर है, 180 - 60 इज़ 120, जिसमें से 80 डिग्रीज़ जो है वो मेरा क्रूज़ का है और 40 डिग्रीज़ हाइकिंग का है। ओके, तो नाउ अब ये भी काफ़ी सिंपल है। अगर मेरा ये वाला एंगल 60 डिग्रीज़ है, आई जस्ट मेक अ रफ स्केच टू इंडिकेट दैट। तो ये लार्जर सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मेरे क्रूज़ को, दैट इज़ 80 डिग्रीज़, और the smaller section would represent hiking, that is 40 degrees। So इस पाई चार्ट को कंप्लीट करना काफ़ी सिंपल था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question 6. A laptop costs $800. In a sale, the cost is reduced by 15%. Work out the cost of the laptop in the sale. तो ये अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि मेरे पास रिड्यूस होने के बाद कितनी अमाउंट बचेगी. आई मीन कि पहले तो मैं निकालूंगा 15%. 800 का कितना बन रहा है. सो ये हो जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय 800. 100 1 100 एंड 8 800. तो 15 8 मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 120. इसका ये मतलब है कि 800 का 15% जो है वो 120 है. ओके और उसने हमसे बोला है कि इन अ सेल द कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड बाय 15%. सो 800 का 15% हमारे पास रिड्यूस हुआ है. अब इसको हम किस तरह एक और भी कर सकते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 800 की जो वैल्यू आई है 800 जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, इसको मैं माइनस कर दूंगा 120 से. तो मेरे पास टोटल बचेंगे $680. सो द करेक्ट आंसर इज़ 680. पहले मैंने 15% निकाला 800 का, तो मुझे पता चल गया कि कितनी प्राइस रिड्यूस हुई है. $120 मेरे रिड्यूस हुए हैं, तो मैंने उसको 800 में से माइनस कर दिया. हैंस मेरे पास आंसर आ गया 680. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्कआउट 3/4 + 5/6. गिव योर आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. मिक्स नंबर का मतलब है कि A/B/C. दिस इज़ अ मिक्स नंबर जिसमें हमें अपना आंसर देना है. सबसे पहले तो मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो आई वुड टेक एन एलसीएम. एलसीएम जब मैं लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 6 × 4 और ये हो जाएगा 4 × 6. सो दिस वुड बिकम 24. अब 3 × 6 and add 5 × 4 in it. Over 6 4s are 24. Okay, 3 6 are 18 plus 5 4s are 20. This is divided by 24. तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 + 20 दैट इज़ 38 over 24. अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे लिए नंबर्स ईजी हो, उनके टेबल्स निकालना या उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना. तो मैं इसको डिवाइड करूँगा बाय 2. ये हो जाएगा 12 एंड दिस वुड बिकम 2 1s are 2 and 2 9s are 18. दिस बिकम्स 19 over 12. बट रिमेंबर इट इज़ नॉट अ मिक्स नंबर. तो अब हमें इसको एक मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे 19 आ जाएगा इनसाइड द डिवीजन टेबल एंड 12 आउटसाइड. 12 1s are 12. 19 - 12 is 7. तो अब मेरे पास मैं डेसिमल्स नहीं लूँगा क्योंकि उसने मुझसे मिक्स नंबर में ही आंसर मांगा था. तो अब ये बहुत सिंपल हो गया. रिमाइंडर वुड बी माई न्यूमरेटर, 12 वुड बी माई डिनोमिनेटर एंड 1 आउटसाइड एवरीथिंग. सो दिस बिकम्स 17/12. This is my correct answer. Now let's move on to the next question. Question 8. Sufia walks at an average speed of 4 kilometers per hour. Work out the time taken to walk 13 kilometers. Again a very simple question. सबसे पहले तो उसने मुझे बोला है कि सूफिया walks at an average speed of 4 kilometers per hour and the distance is 13 kilometers. तो we all know the formula for calculating speed, that is distance over time. ओके तो speed is equals to distance over time means कि उसने मुझे यहाँ पे speed दी हुई है 4, distance दिया हुआ है 13 and I have to find out the time. तो time मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा. सो द इक्वेशन वुड बिकम time is equals to 13/4. अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल. अब मैं इसको पहले कन्वर्ट करूँगा इन डेसिमल्स. तो मेरे पास ये आ जाएगा 13 इनसाइड डिवीजन बॉक्स, 4 आउटसाइड, 4 3s are 12. मेरे पास 1 डिनोमिनेटर बचा. अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कराऊंगा. 0 यहाँ पे आ जाएगा. 4 2s are 8. सो दिस बिकम्स 2 एंड नाउ अगेन अ 0 इंट्रोड्यूस्ड. 4 5s are 20. अब मेरे पास रिमाइंडर 0 है. रिमाइंडर में आई हैव नथिंग एंड द वैल्यू आई हैव इज़ 3.25 hours. बट उसने मुझे बोला है कि मुझे आंसर अपना आवर्स और मिनट्स में देना है. तो अब 3 hours तो मेरे पास आ गए, लेकिन ये जो 0.25 hours हैं इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मिनट्स. तो आई नो कि 1 hour में मेरे पास 60 मिनट्स होते हैं. तो 0.25 hour में मेरे पास x मिनट्स होंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं. 1/4 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल्स टू x. So 4 1s are 4, 4 1s are 4 again,
2 is left, 20, 15. X is equals to 15 minutes. तो मेरे पास ये आंसर आ गया 3 hours and 15 minutes. I hope you all understand. Now let's move on to the next question. Now, question 9. A sequence of patterns is made using crosses and circles. Part A, draw pattern 4. अब उसने मुझे 3 डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं. आई मीन द सेम पैटर्न्स बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ क्रॉसेस एंड सर्कल्स. अब मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों पैटर्न्स में नोट करूँगा कि कोई सिमिलैरिटी है या पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपने पैटर्न 4 को ड्रॉ करूँगा. सो अब मैं देख सकता हूँ पैटर्न 1 में मेरे पास बॉटम लाइन में 3 क्रॉसेज हैं, पैटर्न 2 में मेरे पास बॉटम लाइन में 4 क्रॉसेज हैं और पैटर्न 3 में मेरे पास बॉटम लाइन में 5 क्रॉसेज हैं. तो इसका मतलब पैटर्न 4 में मेरे पास बॉटम लाइन में 6 क्रॉसेज होंगे. ओके, ये मैंने टोटल ऑब्जर्वेशन से जज किए. नाउ अब मैं 3 स्पेस बॉक्सेस स्किप करूँगा, 1 2 3, एंड नाउ आई ड्रॉ 6 क्रॉसेस. सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड देन 6. नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, अब मेरे पास यहाँ पे एक क्रॉस है इन पैटर्न 1, इन पैटर्न 2 2 क्रॉसेस, एंड इन पैटर्न 3 आई हैव 3 क्रॉसेस. तो मेरे पास पैटर्न 4 में अबव दिस क्रॉस मेरे पास 4 क्रॉसेस होंगे. सो दिस इज़ 1 2 3 एंड 4. सर्कल्स आर वेरी इजी क्योंकि वो एक टोटली एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जितने क्रॉसेस हैं वो उन बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं. सो आई ड्रॉ द सर्कल्स एज इट इज़. 1 2 3 4 5, again 1 2 3 4 5, again 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. इस तरह मेरे पास पैटर्न 4 में पैटर्न 4 ड्रॉ हो गया. नाउ पार्ट बी, कंप्लीट द टेबल फॉर पैटर्न 4 एंड पैटर्न 5. पैटर्न 4 का टेबल तो मैं इसी को देख के अपना नोट कर लूँगा और ये आप ट्रेंड को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं. फर्स्ट मैं आपको पैटर्न से नोट करके दिखाता हूँ. सो क्रॉसेस मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो पैटर्न 4 में मेरे पास होगा 10 और पैटर्न 4 में मेरे पास सर्कल्स कितने हैं 5 10 15 एंड 20. नाउ पैटर्न 5 अब हम करेंगे इनके पैटर्न को नोट करते हुए. इसमें मेरे पास 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें अगेन 2 का डिफरेंस है. तो ऑब्वियसली 4 एंड 5 में भी +2 का डिफरेंस होगा. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 12. ओके, 2 2 हर उसमें इंक्रीज़ कर रहा है. 4 से 6 6 से 8 8 से 10 एंड 10 से 12 +2 होता जा रहा है. नाउ अब 2 और 6, तो मेरे पास यहाँ पे +4 का इंक्रीज़ आ रहा है. ये है 4 का इंक्रीज़. 6 एंड 12 में मेरे पास 6 का इंक्रीज़ है. ओके, एंड 12 एंड 20 में मेरे पास 8 का इंक्रीज़ है. इसका मतलब इनमें जो वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं उनके इंक्रीज़ में +2 का फ़र्क है. तो इसका मतलब ये दोनों जो इंक्रीज़ होंगे दिस वुड बी 10. ओके, और ये हो जाएगा 20 + 10, दिस इज़ 30. ओके, यू सी हाउ ईजी दैट वॉज to solve the table using the pattern. Now option C, sorry part C, the expression for the number of crosses in pattern n is 2n + 2. इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, कह रहा है पैटर्न n में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रॉसेस हैं वो है 2n + 2. मतलब उसने हमें n टर्म बताई है. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ क्रॉसेस इन पैटर्न 35. तो पैटर्न 35 में n की वैल्यू में मैं 35 रख दूंगा, इस तरह मेरे पास आंसर आ जाएगा. सो दिस इज़ 2 × 35 + 2, 2 35 is 70, 70 + 2 is equals to 72. So 72 is my answer. Now the part D, find an expression in terms of n for the number of circles in pattern n. अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने ये नोट किया हुआ है कि मेरे पास जो इंक्रीज़ आ रहा है हर वैल्यू में सर्कल्स की, वो आ रहा है पहले 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का. अब इनमें मेरे पास जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ 4 6 8 एंड 10. इनमें मेरे पास जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ कि ये सब +2 हो रहा है. 6 एंड 8 अगेन +2, 8 एंड 10 अगेन +2. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसमें एक प्रो टिप ये है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको इवेंचुअली सेकंड फ्रेज में जाके आपको इंक्रीज़ मिल जाए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास था 2, फिर मेरे पास था यहाँ पे 6 एंड देन 12 एंड देन 20. ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा था 4 का, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर 20 का. अब मैंने ये नोट कर लिया कि इनके डिफरेंसेस में 2 2 का डिफरेंस है, यानी मुझे सेम कांस्टेंट टर्म मिल गई. आई गॉट द कांस्टेंट टर्म. अब मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ पे सबसे पहले एन स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल लूँगा। तो एन स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालूंगा फॉर 1, 2, 3 एंड 4। अब फॉलो करें जो जो मैं करता जा रहा हूँ, एंड इवेंचुअली आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपको जब भी इस तरह की कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, यू कुड अप्लाई दिस मेथड। 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16। अब मैं यहाँ पे सारे स्क्वायर्स लिस्ट करूँगा, 1, 4, 9 एंड 16। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके नीचे मैं इनकी वैल्यूज़ को लिस्ट करूँगा, दैट इज़ 2, 6, 12 एंड 20। 2, 6, 12 and 20. Do you notice any pattern? Now, पैटर्न यहाँ पे ये है कि 1 में फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 2। जब 2 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 1 आ रहा है। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने में 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने में मेरे पास 4 आ रहा है। 12 में से 3 9, 20 में से 4 16। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये है कि इसमें मैं +1 कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है, इसमें मैं +2 कर रहा हूँ, इसमें +3 और इसमें +4। इसका मतलब कि इवेंचुअली अगर मेरे पास इसके आगे कोई नंबर हो तो एन स्क्वायर में निकालूंगा 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 30 और इसमें हो रहा है +5। सो द ट्रेंड इज़ कि जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी एन स्क्वायर में ऐड होने वाली वैल्यू भी बढ़ रही है। तो एन स्क्वायर में ऐड तो हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू को नहीं कर सकते, नॉट 1 और 2, ओके, क्योंकि एन की वैल्यू के साथ साथ ही मेरे पास इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो एन टर्म बनेगी दैट इज़ एन स्क्वायर प्लस एन, और इसमें जब मैं एन को कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगी एन प्लस एन ब्रैकेट ओपन n+1। ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। सो दिस इज़ माई करेक्ट आंसर। अब मैं आप लोग को एक बार सारे स्टेप्स को वो करवा देता हूँ रिकॉल। पहले हमने क्या किया, मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास कांस्टेंट टर्म कहाँ पे जाके आ रही है। मुझे कांस्टेंट टर्म मिली इनके डिफरेंसेस में, दैट इज़ +2 का इंक्रीज़ हो रहा था सब में। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सेकंड या थर्ड उसमें कांस्टेंट टर्म मिल जाए तो आपने सबसे पहले एन स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ निकालनी है और उनको एक जगह स्टेट करना है। उसके बाद आपने अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को, जो कि 2, 6, 12 और 20 थी, जो कि आप टेबल से देख सकते हैं, 2, 6, 12, 20, इनको मैंने एज इट इज़ ला के कॉपी कर दिया। अब मुझे नोट करना है फॉर द ट्रेंड कि इनमें कितनी वैल्यूज़ ऐड करने को या सब्ट्रैक्ट करने में मेरे पास करेक्ट आंसर आ रहा है या वैलिड एंड टर्म बन रही है। ओके, तो अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप इसको इस तरह अप्लाई कर लें ये मेथड, और मैं इस पर एक सेपरेट भी वीडियो बनाऊंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको उस वीडियो के बारे में जैसे ही मैं अपलोड करूँ यू कैन गेट नोटिफाइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 10, द स्केल ड्राइंग shows a field A, B, C, D, E. The field contains a stage that is a sector of a circle center C. The scale is 1 centimeter to 2.5 meters. Find the actual radius of the stage. अब एक्चुअल रेडियस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप अपने रूलर का यूज़ करेंगे। रूलर को यूज़ करते हुए आप अपनी रेडियस की रीडिंग निकालेंगे इन सेंटीमीटर्स। उसके बाद जो भी आपकी रीडिंग आई उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल रेडियस आ जाएगा। अच्छा, अब ये सी आई ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम का आंसर हमारे आंसर से डिफ़र करेगा क्योंकि सी आई प्रिंट्स की कॉपी और या साइज़ का अलग होता है और हम जो प्रिंट करवाते हैं उसका साइज़ अलग होता है, हेंस वैल्यू डिफ़र कर सकती है, बट फिर भी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने स्केल को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेडियस। उसके बाद हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑप्शन पार्ट बी, द रेस्ट ऑफ द फील्ड इज स्प्लिट इनटू 2 zones, zone 1 एंड zone 2। सही है। zone 1 एंड zone 2 डू नॉट इंक्लूड द स्टेज। नाउ दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट इंक्लूड द स्टेज, यानी दोनों की जो भी जोन्स हैं उनका पर्टिकुलर एरिया है उसमें स्टेज इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। zone 1 is the region that is nearer to EA than to ED. Now the first thing that should come to a student's mind after listening to this line is nearer to EA than to ED, which means कि यहाँ पे 2 लाइन्स की बात हो रही है, 2 डिफरेंट लाइन्स। तो इधर बात हो रही है एंगुलर बाइसेक्टर की, एंड आई होप उसने नेक्स्ट पार्ट में हमसे यही बोला होगा, यूजिंग कंपासेस एंड स्ट्रेट एज ओनली कंस्ट्रक्ट द बाउंड्री बिटवीन zone 1 एंड zone 2, शेड द रीजन दैट रिप्रेजेंट्स zone 1। तो हम ये दोनों काम एक साथ ही कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना क्या है कि हमारे पास जो लाइन है
that is EA and ED. Now do you notice a common point? The common point is E. इसका मतलब हमारा एंगुलर बाइसेक्टर जो बनेगा दैट वुड बी फ्रॉम पॉइंट E. तो हम यहाँ पे अपना एंगुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद जोन 1 को शेड कर देंगे. फर्स्ट लेट्स कंस्ट्रक्ट द एंगुलर बाइसेक्टर. आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर. सबसे पहले मैं कंपास को यूज़ करूँगा. कंपास की लेंथ आपकी अपनी मर्ज़ी की हो सकती है, इट डजेंट मैटर. कंपास को यूज़ करते हुए मैं इसको ई पे प्लेस करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर सेक्टर ड्रॉ कर दूँगा सर्कल का. उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ. सही है. तो अब मैं अपने कंपास की लेंथ को थोड़ा कम करूँगा और अब जहाँ पे मेरे इस सेक्टर ने इंटरसेक्ट किया है लाइन ई ए और ई डी के साथ, वहाँ पे मैं दो क्रॉसेस बना लूँगा. फर्स्ट वन फ्रॉम हेयर. ओके, अब मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरे दो क्रॉसेस जो हैं ये आपस में मीट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे अपनी कंपास की लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. कंपास की लेंथ मैंने इंक्रीज़ की. ऑन द फर्स्ट साइड मैंने एक ड्रॉ किया एंड फ्रॉम डी मैंने अगेन ये ड्रॉ किया. तो अब मेरे जो दो पॉइंट्स हैं दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. लेट मी इरेज ऑल ऑफ द अननेसेसरी स्टफ. नाउ अब मैं अपना स्केल प्लेस करूँगा वेयर इट इज़ इंटरसेक्टिंग. अब पॉइंट ई पे मैंने अपना स्केल रखा, जहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करी थी वहाँ तक मैंने अपने स्केल को प्लेस किया. नाउ आई वुड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज़ माई एंगुलर बाइसेक्टर. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करेंगे दैट इज़ कि वो स्टेज को जोन 1 में इन्वॉल्व कर लेंगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना. वी वॉन्ट ओनली द पार्ट ऑफ जोन 1 दैट इज़ टिल द स्टेज, नॉट क्रॉसिंग द स्टेज. ओके, तो जितनी एक्स्ट्रा लाइन है उसको आपको इरेज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू कीप इट टिल हेयर, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था कि दैट लाइन इज़ इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर क्लियरली स्टेटेड दैट जोन 1 एंड जोन 2 डू नॉट इंक्लूड द स्टेज. तो जितना एक्स्ट्रा अननेसेसरी हमने लाइन बनाई है फॉर परफेक्शन उसको हम एक इरेज कर देंगे और उसके बाद फिर हमारे पास जोन 1 रेडी हो जाएगा. सो लेट मी जस्ट इरेज द एक्स्ट्रा स्टफ. ओके, देखें अब मेरे पास दोनों बाउंड्रीज मेरे पास बाउंड्री आ गई है बिटवीन लाइन ई ए एंड ई डी. अब उसने हमसे बोला था शेड द रीजन दैट रिप्रेजेंट्स जोन 1. जोन 1 इज़ द रीजन दैट इज़ नियरर टू ई ए दैन टू ई डी. इसका मतलब ये है कि हम कौन से रीजन शेड करेंगे दैट इज़ नियरर टू ई ए दैन टू ई डी. इसका मतलब ये वाला पूरा रीजन हमारे पास शेड हो जाएगा. सो दिस इज़ द शेडेड रीजन एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. इस तरह मेरे पास पार्ट बी का 1 और 2 दोनों सॉल्व हो गए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट सी. द फील्ड इज़ यूज्ड फॉर कॉन्सर्ट. टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट कॉस्ट $30.75 ईच. वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स. अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो उसने हमसे बोला है कि एक टिकट की कॉस्ट है 30.75 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स. दैट वुड बी इक्वल्स टू x. अब मैं 8 को मल्टीप्लाई कर लूँगा 30.75 से. बेसिक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का सवाल है. सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 8. 8 5 40, 4 and 0. 8 7 56. 56 plus 4 is 60. 6 and 0. 8 0 is a 0. This 6 decimal comes here. 8 3s are 24. So this is x is equals to $246.0. $246 is our final answer. Now let's move on to the next question. Question 11. Factorize 4m square minus 14m. अब एक बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है. फैक्टराइज का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे हम इसमें से कॉमन ले लेंगे. बेसिकली हम यहाँ पे 2m को कॉमन ले लेंगे. तो 2m कॉमन लेने पे मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2m minus 7. तो एक बेसिकली बिल्कुल फेयरली सिंपल क्वेश्चन था ये, नथिंग डिफिकल्ट. नाउ हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स 1/3 √4 2 raised to power 0 under root 5 10/8 and 2 raised to power -1. Write down the number in the list that is irrational. अब इरेशनल नंबर वो होता है जिसका कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता. तो अब हमें इस लिस्ट में ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. 1/3 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. √4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एंड 2/1 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. 2/0 becomes 1. 1/1 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन.
रूट 5 को हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि रूट 5 को जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, जिसको हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते बिकॉज इट हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डेसिमल्स. 10/8 is a proper fraction. 2 raised to power -1 is 1/2, and this is also a proper fraction. So the correct answer is root 5. Now the next question. Question 13. 5 into 10 raised to power 7 minus 8 into 10 raised to power 6. Give your answer in standard form. बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो छोटी पावर है दैट इज़ 10 रेज टू पावर ऑफ 6, इसको मैं थ्रू आउट द इक्वेशन कॉमन ले लूँगा. तो मैंने 10 रेज टू पावर ऑफ 6 को कॉमन लिया. सो आई एम लेफ्ट विथ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 8. ओके, एक बार मेरे पास ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस इस पूरे ब्रैकेट को 10 रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 10 raised to power 6 outside the bracket, 5 tens are 50, 50 minus 8 which is 42. So 10 raised to power 6 multiplied by 42. This is 42 multiplied by 10 raised to power of 6. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म वेरीज फ्रॉम 1 to 9 और ये नंबर 42 है, तो इसमें हमें एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पावर में इंक्रीमेंट हो जाएगा. So this becomes 4.2 multiplied by 10 raised to power of 7. So this is our final answer, 4.2 multiplied by 10 raised to power of 7. Again एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्म को इन्वॉल्व करते हुए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 14. 120 के उसने हमें प्राइम फैक्टर्स बताए हुए हैं, रिप्रेजेंट किया है 120 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, या इन सिंपल वर्ड्स 120 का एलसीएम बताया हुआ है. 126 का प्राइम फैक्टर्स बताए हुए हैं. द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 120 एंड 126 इज 2520. राइट 2520 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. अब तो ये तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि उसने हमें टोटल दोनों के प्राइम फैक्टर्स बताए हुए हैं एंड उसने हमें बोला कि इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 2520. सो दैट सिंपल. सबसे पहले मैं 120 के प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट कर लेता हूँ. सो दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 multiplied by 3 and multiplied by 5. Now this is 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7. अब मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि मेरे पास कितने लूप्स बन रहे हैं. सो दिस इज़ 1 लूप, 2 and 2, एंड दिस इज़ द सेकेंड लूप 3 and 3. आई कैन फाइंड नो अदर लूप, तो बाकी जितनी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी. जो लूप में उसको रिपीट हम नहीं करेंगे, उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय ये एक 2 ये एक 2, तो टोटल 2 2 है मेरे पास. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस बिकम्स 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और एक लूप में जो हमने 3 निकाला है उसको हम यहाँ पे स्टेट कर देंगे. मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ एंड 7 एज इट इज़. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. So this is our final answer. Now let's move on to the next question. Question 15. Each interior angle of a regular polygon is 160 degrees. Find the number of sides of this polygon. इसके लिए हम इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. दैट इज़ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाइड बाय n minus 2 divided by n, which is the number of sides of the polygon. इंटीरियर एंगल मेरे पास है 160. दिस इज इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू 180 को हम इस ब्रैकेट से टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस बिकम्स 180n माइनस 360 एंड डिवाइडेड बाय n. तो n को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ. दिस बिकम्स 160n इज इक्वल्स टू 180n माइनस 360. नाउ 360 को मैं इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगा सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव, और 160n को मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा ताकि मेरे पास दोनों वैल्यूज जिन n कंटेन करते हैं वो मेरे पास इस जगह पे आ जाए. सो दिस इज इक्वल्स टू 360 इज इक्वल्स टू 180n माइनस 160n. इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा एट दिस साइड. ये हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 20n. So n is equals to 360 divided by 20. This is simple division. 0 0 gets cancelled. 2 1s are 2 and 2 18s are 36. So the value of n is equals to 18, which means कि हमारे पास जो polygon में number of sides हैं that are 18. Okay, I hope you all understand. Now let's move on to the next question. This is question 16.
अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसने हमें फिगर बताई हुई है एंड इज सेइंग ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर अ ट्रांसलेशन बाय वेक्टर 3, 3, -5। अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं, या तो आप ट्रांसलेशन के फॉर्मूला को यूज़ करें या फिर आप सिंपल मेथड यूज़ करें। सिंपल मेथड ये है कि उसने जो हमें वेक्टर बताया हुआ है, इसमें हमें पता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये बताता है कि हमें राइट जाना है या फिर लेफ़्ट। इन दिस केस दिस इज़ +3, तो इसका मतलब हम राइट पे जाएंगे। एंड -5 रिप्रेजेंट्स कि हमें अप जाना है या फिर डाउन। एंड इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास साइन नेगेटिव है, विच मीन्स यू हैव टू गो डाउन। तो हर पॉइंट को मुझे 3 प्लेसेस अप शिफ्ट करना है एंड 3 प्लेसेस राइट एंड 5 प्लेसेस डाउन। ईच एंड एवरी पॉइंट वुड बी शिफ्टेड इन दिस वे। तो सबसे पहले मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। 3 टू द राइट एंड 5 डाउन। 1 2 3 टू द राइट एंड 5 डाउन। 1 2 3 4 5। तो मेरे पास जो पॉइंट बन रहा है दैट इज -3, सॉरी 5, -3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को चूज कर लेते हैं। 3 टू द राइट, 1 2 3 एंड 5 डाउन। 1 2 3 4 5। सो दिस बिकम्स 5 and -2. Now let's move this point. 3 to the right, 1 2 3 and 5 down. 1 2 3 4 5. It becomes 2 -2, and this point here, 1 2 3 to the right and 5 down. 1 2 3 4 5. As simple as it is. And now the last point, sorry, the second last point, which is this one. 3 to the right, 1 2 3 and 5 down. 1 2 3 4 5. And this point is 1 and -1. The last point, 3 right, 1 2 3 to the right, and we have done this point is left, 1 2 3 to the right and 1 2 3 4 5 down. So I think all of the points are done now, and we have to draw the figure only. So this is like this. One point is missing here, which is this one. I think this is this point. 3 to the right, 1 2 3 right and 5 down. 1 2 3 4 5. Yes, this point was missing. So that is 2, 1. All the points are listed. अब मैं सिंपल एक फिगर ड्रॉ कर लूँगा और मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलेटेड वेक्टर बन गया है, दैट इज T. Easy 2 marks. The next part. Now part B says describe fully the single transformation that maps shape A onto shape B. For checking this whether it's a rotation or a reflection. इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप सारे पॉइंट्स को मैच करते हुए लाइन बनाएं, और अगर ये लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती दैट मीन्स कि ये एक रोटेशन है, वरना ये ग्राफ रिफ्लेक्शन का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन की है। तो मैंने दो लाइंस यहाँ पे बना के इंडिकेट कर दिया विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग विच ईच अदर, दैट शोज़ कि ये एक रोटेशन का ग्राफ है। अब कितनी रोटेशन हुई है, वी कैन सी दैट इट्स 90 डिग्रीज बिकॉज इमेज विच वॉज हॉरिजॉन्टल इमेज ये एक वर्टिकल इमेज बन गई, विच मीन्स कि एक 90 डिग्री की यहाँ पे रोटेशन हुई है in the clockwise direction, because this direction is clockwise and this is anti-clockwise. This one is anti-clockwise and this is clockwise direction. तो इस वक्त ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट वॉज हॉरिजॉन्टल एंड इट बिकेम वर्टिकल, सो दिस इज़ 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, बिकॉज 2 मार्क्स तो हमें मिल गई आइडेंटिफाई करने की एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब हमें इसका सेंटर चेक करना है, तो सेंटर चेक करने के लिए सबसे पहले दो आपने पॉइंट्स चूज़ कर लेने हैं। मैंने ये दो पॉइंट्स चूज़ किए और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए लाइन बना दी, लाइट लाइंस, सो दैट कि मैं कंफ्यूज ना हूँ जब मैं अपने आर्क्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने एक कंपास लिया और अब मुझे दो आर्क्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम ईच ऑफ द सेंटर्स, ओके, फ्रॉम ईच ऑफ द पॉइंट्स जो कि मैंने इंडिकेट किए हैं। दोनों पॉइंट्स से मुझे दो आर्क्स ड्रॉ करने हैं, जहाँ पे ये दोनों फिर उसके बाद मेरे पास टोटल 4 आर्क्स हो जाएंगे। मैं सारी लाइंस को मैच करूँगा और जहाँ पे ये दोनों लाइंस मेरे पास इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। लेट मी शो यू हाउ। फर्स्ट मेरे पास ये वाला पॉइंट है जिसमें मैंने इस तरह एक लाइन ड्रॉ की है। नाउ हाउ टू डिटरमाइन कि मुझे आर्क्स किधर ड्रॉ करनी है। सो बेसिकली मुझे इस पेंसिल के ऑपोजिट साइड्स पे आर्क्स ड्रॉ करनी है, एक आर्क मेरी इधर ड्रॉ होगी और एक आर्क इधर। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द आर्क्स। अब मैंने अपनी इस वाली लाइन के पैरेलल दो आर्क्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन स्केच करूँगा, लॉन्गर लाइन, ताकि मेरे पास एक प्रॉपर लाइन रेडी हो।
ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन रेडी। अब मैं अपने इस वाले पॉइंट को यूज़ करूँगा जहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, और आई वुड यूज़ द कंपास टू ड्रॉ आर्क्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द पेंसिल। एक आर्क मैं इधर ड्रॉ करूँगा और एक आर्क इधर, उसके बाद उन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द आर्क्स। अब आप ये दे सकते हैं कि आफ्टर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन मेरे पास एग्जैक्टली वो पॉइंट आ गया जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन विच इज़ 4,1। सो दिस इज़ आवर सेंटर ऑफ रोटेशन। अब मैं इसको पूरी एज अ स्टेटमेंट अपने पार्ट में लिख दूंगा। सो दिस इज़ 90 डिग्री clockwise rotation, 90 degree clockwise rotation about the center 4,1। सो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर, कंप्लीट स्टेटमेंट, जिसमें आपको प्रॉपर 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन to question 17. A figure has been given in which a triangle is drawn, a shaded triangle. The diagram shows a shaded triangle ABC on a 1 centimeter square grid. The equation of the line AC is y is equals to negative 3 over 2x plus 1. The shaded region inside the triangle ABC is defined by 3 inequalities. One of these inequalities is y is greater than equals to negative 3 over 2x plus 1. The question is find the other two inequalities. That's quite simple. पहली उसने जो हमें इनइक्वालिटी बताई है दैट इज़ ऑफ लाइन ए सी, जो कि है y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू नेगेटिव 3 over 2x plus 1। ग्रेटर क्यों? बिकॉज इट लाइज अबव द लाइन। नाउ अब हमें ए बी का ग्रेडियंट, ए बी की इक्वेशन निकालनी है और बी सी की। सबसे पहले बी सी इज़ अ वर्टिकल लाइन। इसका मतलब ये कि बी सी में जो है हमारे पास इस पर ये एक वर्टिकल लाइन है, तो इसका जो सिंपल इक्वेशन होगी दैट वुड बी x इज़ इक्वल्स टू 4। ओके, और अब इसकी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी? बिकॉज द शेडेड रीजन लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज़ x इज़ लेसर एंड इक्वल्स टू 4। ओके, ये तो बहुत सिंपल था। नाउ लाइन ए बी में हमारे पास y इंटरसेप्ट है। लाइन ए बी को हम निकालेंगे यूजिंग y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, इसमें हमारे पास c की वैल्यू है +1। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। m इज़ बेसिकली द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए हम 2 पॉइंट्स चूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ दिस विच इज़ 0,1 which is also the y-intercept, and the second point is point B, that is 4 and 5. So this is 4,5. y2 minus y1 over x2 minus x1, 1 minus 5 over 0 minus 4. This becomes negative 5 plus 1, which is negative 4 over negative 4. So the gradient is basically +1. The equation becomes y is equals to x plus 1. This is our equation for लाइन ए बी। और लाइन ए बी में हमारे पास अगेन जो हमारा शेडेड रीजन है दैट लाइज बिलो द लाइन, तो इसकी इनइक्वालिटी होगी y इज़ लेसर एंड इक्वल्स टू x plus 1। सो दिस इज़ y इज़ लेसर एंड इक्वल्स टू x plus 1। लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस इनइक्वालिटीज। सो दिस इज़ x इज़ लेसर एंड इक्वल्स टू 4 and y is lesser and equals to x plus 1. Now the next part B, work out the area of the triangle ABC. That's again very simple. यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, उसके लिए हमारे पास बेस की लेंथ तो सिंपल है, विल बेसिकली जस्ट काउंट द बॉक्सेस, क्योंकि उसने हमें बताया ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है। सो बॉक्सेस आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 बॉक्सेस हमारी बेस है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर्स इज़ द वैल्यू ऑफ आवर बेस। और हाइट के लिए बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। सो दीज टू कंबाइन टू फॉर्म वन बॉक्स। दिस इज़ द सेकेंड वन, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। सो बेसिकली हमारी यहाँ पे जो हाइट आ रही है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। इसको हम अपने फॉर्मूले में एप्लीकेट कर देते हैं। वर्क आउट द ट्राइंगल ऑफ ए बी सी विच इज़ हाफ बेस इंटू हाइट। द वैल्यू ऑफ बेस इज़ 10 एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज़ 4। सो दिस बिकम्स 40 over 2. This is equals to 20 centimeter square. Now let's move on to the next question. Question 18. Lynn records the masses in grams of 60 onions. The cumulative frequency diagram shows the results. Now, उसने हमें cumulative frequency diagram दी हुई है. He's asking use the diagram to find an estimate for the interquartile range. So basically what is the interquartile range? It is
द वैल्यू ऑफ अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी. नाउ फॉर द अपर क्वार्टाइल वैल्यू, उसके लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे अपर क्वार्टाइल है कितना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से. सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अपर क्वार्टाइल इज़ 3n/4. n में हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, दैट इज़ 60. सो दिस इज़ 3 × 60 divided by 4. 4 1s are 4 and 4 15s are 60. 15 3s are 45. 45 पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ 45, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास अपर क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी आ रही है. लेट मी जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ स्केल. तो मेरे पास जो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आ रही है दैट इज़ बेसिकली 300. अब मैं लोअर क्वार्टाइल के लिए वर्किंग करूँगा. लोअर क्वार्टाइल को निकालने का फॉर्मूला होता है n/4. तो लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी n/4. n में मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा, दैट इज़ 60. 60/4 इज़ इक्वल्स टू 15. 15 मैंने मार्क किया, 15 पे मैंने चेक किया इधर, और अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगा डाउनवर्ड्स. तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 205. ये वैल्यू है लोअर क्वार्टाइल की. सो अब मैं वर्किंग कर लेता हूँ. अपर क्वार्टाइल की वैल्यू मेरे पास आई है 300 एंड लोअर क्वार्टाइल की मेरे पास वैल्यू आई है 205. सो 300 माइनस 200 इज़ 100 एंड दिस इज़ 95 ग्राम्स. 95 ग्राम्स मेरे पास आंसर आ रहा है फॉर द इंटर क्वार्टाइल रेंज. नाउ पार्ट बी. An onion is large if its mass is at least n grams. 24 of the 60 onions are large. Find the value of n. अब यहाँ पे जो फोकस करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ एट लीस्ट. एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर एंड इक्वल्स टू. इसका मतलब अगर मास की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू होगी एन की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के या किसी स्पेसिफिक ग्राम्स की वैल्यू के, तो हमारे पास जो है वो अनियंस लार्ज कंसिडर होंगे. ग्रेटर दैन मीन्स ये फोकस कर रहा है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 60 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करूँगा. सो दिस इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 60 माइनस 24 36. 36 पे मैं अपनी वाई एक्सिस पे, ये मेरी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करूँगा कि मेरे पास मास की वैल्यू कितनी आ रही है. सो आई विल गो टू 36. 36 पहले मैंने इंडिकेट किया, 36 इज़ दिस वन. यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन किया टिल इट रीचेस द ग्राफ, और अब मैं इसको एक रूलर यूज़ करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रैग करूँगा टिल द एक्स एक्सिस. सो मैंने अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. सो दिस इज़ बेसिकली 255 एंड 260 ग्राम्स. मेरे पास जो वैल्यू आ रही है फॉर द वैल्यू ऑफ n इज़ बेसिकली 260 ग्राम्स. मानी ये मतलब कि अगर 260 से अगर कोई वैल्यू ग्रेटर होगी या 260 के इक्वल होगी, दैट अनियन वुड बी कंसिडर्ड एज लार्ज. सो n इज इक्वल्स टू 260 grams. This was an easy question. Now let's move on to the next one. Now, question 19. The diagram shows two mathematically similar mugs. Bring all the similarity ratios to your mind now. The small mug has width W centimeter and holds 270 ml when full. That means कि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की बात हो रही है कि कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है. The large mug has width 8 cm and holds 650 ml when full. Find the value of W. Very easy. यहाँ पे जो हम सिमिलैरिटी का रेशियो यूज़ करेंगे दैट इज़ L1/L2 इज इक्वल्स टू V1/V2 वॉल्यूम. अब हमारे पास L1/L2 का यहाँ पे होल क्यूब हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम. सो फर्स्ट वॉल्यूम इज़ 270 which is divided by 640. This is equals to W cube divided by 8 whole cube. अब 270 over 640, so this 0 and 0 gets cancelled. 8 cube would move on the left hand side. सबसे पहले तो मैं 8 cube की वैल्यू लिख लेता हूँ. So मैं अपनी वर्किंग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. This is 27 over 64 multiply by the value of 8 cube is 512, जो कि आपको याद होनी चाहिए, is equals to W cube. Now 27 into 512 divided by 64. अब यहाँ पे मुझे सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो मैं इसको सब यूज़ करते हूँ 2 से पहले मैं इसको सब्ट्रैक्ट 2 से इसको रिड्यूस करता हूँ. सो 2 3s are 6 and 2 2s are 4. 2 2s are 4, 1 left, 5 is 10 and 1 left again, 2 5 6. 32 over 256. Now again
बट दिस टाइम मैं यूज़ करता हूँ, लेट मी यूज़ 4. सो 4 8 32 and 4 6 are 24, 1 left 16 and 4. 64 is left, 8 1s are 8 and 8 8s are 64. Now only 27 multiplied by 8 is left. I'll do it on somewhere on the side. So this is 27 multiplied by 8, 8 7s are 56, 5 and 6, 8 2s are 16. 16 plus 5 is 2 1. So W cube is equals to 216, cube root on both sides. So this is the cube root gets cancelled by W cube is equals to 216 cube, which is equals to 6. अब यहाँ पे भी cubes याद होना must है. W is equals to 6 centimeters. So the final answer is 6 centimeter. Let's move on to the next question. Now question 20, simplify part A. तो अब हमारे पास एक पावर है जो कि वेट कर रही है आउटसाइड द ब्रैकेट. तो ये पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय 16 एंड a रेज टू पावर 20 से. इसके लिए सबसे पहले मैं 16 को सिंप्लीफाई करता हूँ. सो 16 इज़ बेसिकली 4 स्क्वायर and 4 is basically the square of 2. So this becomes 2 square and whole square. And जब दो powers आपस में multiply when a power is waiting outside the bracket they get multiplied by each other. तो ये हो जाएगा 2 raised to power of 4 is equals to 16. So this is basically 2 raised to power of 4 and a raised to power of 20, both being multiplied by 3 over 4. First of all, 2 over 4 into 3 over 4 multiplied by 20 into 3 over 4. So 4 and 4 get cancelled. This becomes 2 cube. 2 cube is equals to 8 multiplied by, this becomes 4 1s are 4 and 4 5s are 20. So 5 3s are 15 and the power on a becomes 15. So this is 8a and a raised to power of 15. Simple question. Expand and simplify. So 2c gets multiplied by 4c minus 3d plus 9d gets multiplied by 4c minus 3d. As simple as it is. 2c and 4c they become 4 to 8, 8c square minus 6dc plus 9 4s are 36 dc minus 9 3s are 27 d square. So this becomes 8c square minus 27 d square. 36 minus 6 is 30, 30 dc. This is my final simplification. I cannot simplify this any much more. So this becomes 8c square minus 27d square plus 30 dc. Let's move on to the next question. Question 21. The inverse of a matrix A is given by 1 over 20 m, 7, negative 1 and k. M and k are positive integers and m is lesser than k. The determinant of matrix A is 20. Find A. Basically यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज़ A, B, C एंड D. अब जब हमें इसका इन्वर्स निकालना होता है तो हम 1 ओवर डेट ऑफ A करते हैं जो कि हमारा डिटर्मिनेंट होता है और हम इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं. दिस बिकम्स D, दिस बिकम्स A, ये हो जाता है नेगेटिव B और ये हो जाता है नेगेटिव C. सो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स की कंडीशन है दैट इज़ सिमिलर टू दिस वन. इसको हमें चेंज करना है इनटू आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स. तो इसके लिए मैं अपनी A और D की पोजीशंस को शिफ्ट करूँगा. सो K वुड कम हेयर एंड M वुड कम हेयर. उसके बाद मैं अपनी B और C को मल्टीप्लाई करूँगा विद नेगेटिव साइंस. सो दिस वुड बिकम नेगेटिव 7 एंड दिस वुड बिकम पॉजिटिव 1. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने ये किस तरह इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में लाया. अब मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यूज़ करते हुए अपने ओरिजिनल आंसर निकालूंगा. Determinant is AD minus BC. So this is AD and this is BC. AD is K multiplied by M minus negative 7 and 2 positive 1. This is equals to 20. So Km minus 7 ones are negative 7. So this negative negative becomes positive. Km plus 7 is equals to 20. Km is equals to 13. अब k और m का मेरे पास जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ओरिजिनल आंसर बनेगा 13. ओके, अब मैं इससे कंक्लूड क्या करूँगा. वी नो कि 13 जो है एक प्राइम नंबर है और 13 कैन बी फाउंड बाय ओनली वन पेयर दैट इज़ 13 into 1 विच इज़ इक्वल्स टू 13. तो अब मेरे पास उसने बोला है कि m इज़ लेसर देन k.
विच मीन्स कि यहाँ पे m की वैल्यू 1 होगी और k की वैल्यू 13 होगी, बिकॉज आई कैन नॉट मेक 13 बाय एनी अदर मैथड। और उसने हमें ये भी बता दिया कि m एंड k और जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो -13 इंटू -1 भी नहीं हो सकता। सो आई हैव बेसिकली ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टू 13, दैट इज़ 13 इंटू 1। तो मेरे पास अब मैं k और m की वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँगा। m की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, k की वैल्यू आ गई 13। अब मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स बनेगा दैट वुड बी 13, -7, 1 and 1. So this was a fairly tricky question, but we dealt it with ease. Let's move on to the next question. Now, this is a functions question. Question 22. fx is this, gx is this, find f -7. तो अब मुझे fx की वैल्यू में fx में अपने -7 इंट्रोड्यूस करा देना है. This is f -7 is equals to 3 multiplied by -7 minus 1 divided by 2. This becomes 7 3s are 21, -21 minus 1 is equals to, or divided by 2. So this becomes -22 divided by 2. This becomes -11. First answer -11. Find f inverse of x. This is again easy. Let fx be equals to y. And now calculate. Y is equals to 3x minus 1 over 2. 2y is equals to 3x minus 1. This becomes 2y minus 1 is equals to 3x, sorry, 2y plus 1, and 2y plus 1 divided by 3 is equals to x. So replace y with fx, so this becomes f inverse of x is equals to 2x plus 1 over 3. This is 2x plus 1 over 3. Very simple question. Let's move on to the next part, that is part C. Now part C. f 9 over 25 is equals to gx. So first let me calculate the value of f 9 over 25. Now f 9 over 25 is equals to 3 multiplied by 9 over 25 minus 1 and then divided by 2. Now 9 3s are 27, 27 over 25 minus 1 divided by 2. So 27 over 25 minus 1 is basically LCM ले लेंगे यहाँ पे 1. This is multiplied by 25. So this is equals to 27 minus 25 over 25 divided by 2. 27 minus 25 is 2 and this is 2 over 25. So this becomes 2 over 25. I would take a reciprocal over here, so this becomes multiplied by 1 over 2. So both of the denominators get multiplied, hence it becomes 2 over 50, and eventually when I simplify it, so it becomes 1 over 25. Now 1 over 25 is equals to gx. The value of gx is 5 raised to power of x. 25 is basically the square of 5. So this is 1 over 5 square is equals to 5 raised to power of x. When I move this 5 square up, the value of power gets negative. So this becomes 5 negative 2 is equals to 5 raised to power of x. This is because of the rule of indices. And as both of the bases are same, hence the powers get equated. So the value of x is equals to -2. So let me just write it down. The value of x in the answer box. This is equals to -2. Now let's move on to the next question. Question 23. A theater offers a singing lesson, a dancing lesson, and an acting lesson. A group of 40 people are asked which lessons they take part in. Some of the results are shown in the Venn diagram. Part A. All 40 people take part in at least one lesson. 3 people take part in a singing lesson and an acting lesson but not a dancing lesson. 7 people take part in dancing lesson only. 19 people take part in a singing lesson. 4 times as many people take part in singing lesson only as those who take part in all the 3 lessons. Use this information to complete the Venn diagram. Now the most important part of solving this question is your English. You need to judge each and every point stated in every statement in order to complete the Venn diagram. सबसे पहले उसने बोला all 40 people take part in at least one lesson. इसका मतलब कोई भी ऐसा लेसन नहीं हो सकता जिसमें हम 0 लिख दें, because all 40 people have to take part in at least one lesson.
3 people take part in a singing lesson and an acting lesson. Singing and acting but not a dancing lesson. Which means कि singing और acting का जो intersection है यहाँ पे 3 आ जाएगा because only 3 people are taking part in a single and acting lesson, not dancing. So here comes 3. Now 7 people take part in a dancing lesson only. ये बहुत simple है. 7 people take part in a dancing lesson only. So here comes 7. Now 19 people take part in a singing lesson. अब यहाँ पे उसने only का word state नहीं किया. इसका मतलब ये जो पूरा singing lesson का box है, this whole box contains 19 people. So 6 plus 3 plus this is equals to 19. 4 times as many people take part in singing lesson only as those who take part in all 3 lessons. Now for example मैं यहाँ पे all 3 lessons के लिए जो कि इन तीनों का intersection है which is this value, इसको मैं रख दूँ x. So x is basically all 3 lessons. तो अब वो कह रहा है इसके 4 times जो है लोग वो singing lesson में part ले रहे हैं, which means 4x is equals to singing lesson. So ये हमारे पास है x and this is 4x. इसका मतलब अब मैं जब इस पूरे बॉक्स को सम अप करूँगा so that would be equals to 19. So this is 4x plus x plus 6 plus 3 is equals to 19. 4x plus x is 5x plus 9 is equals to 19. 5x is equals to 19 minus 9 which is 10. Therefore x is equals to 2. X is equals to 2 means the people who take part in all 3 lessons is equals to 2, which means कि यहाँ पे हमारे पास x की जगह आ जाएगा इधर 2 और इधर आ जाएगा 4x which is 4 2s are 8. So let me just erase it and write it down. Okay, तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया 2 से and 4 2s are 8, तो मेरे पास सिंगिंग लेसन पूरा कंप्लीट हो गया. अब मेरे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई, दैट इज़ द डांसिंग एंड एक्टिंग लेसन्स इंटरसेक्शन. इसको निकालने के लिए मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को सम अप करूँगा और इन सब को इक्वल रख दूँगा 40 के, बिकॉज 40 पीपल आर बेसिकली बीइंग जज्ड इन दिस कंपटीशन. तो इसका मतलब ये है कि अब मसला ये आएगा कि यूनिवर्सल सेट में मेरे पास वैल्यू क्या है. बेसिकली उसने बोला था कि ऑल 40 पीपल टेक पार्ट इन एटलीस्ट 1 लेसन. इसका मतलब ये है कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट जो नल सेट है दैट इज़ इक्वल्स टू 0. मतलब जो मेरे ये वेन डायग्राम है इसके बाहर कोई भी ये कोई भी नंबर नहीं लिख सकता, बिकॉज क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं जो किसी लेसन में पार्ट नहीं ले रहा हो. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन ऑल ऑफ द लेसन, सो दिस नंबर कांट बी 0. अब मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को सम अप करूँगा एंड मेक देम इक्वल टू 40. सो दिस इज़ 8 plus 3 plus 2 plus 6, first box complete, plus 10 plus, let me just make it equals to y, plus y plus 7 is equals to 40. ओके, अब मैंने इसको लिखा 8 plus 3 11, 11 plus 2 13, 13 plus 6 19, 19 plus 10 29, 29 plus 7 36. So 36 plus y is equals to 40, therefore y is equals to 4. तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 4. दिस इज़ हाउ आई हैव completed whole of the Venn diagram. Now let's move on to the next part. Use set notation to describe the subset with 10 people. अब जो मेरे पास ये 10 peoples वाला सबसेट है that is basically neither singing nor dancing and only acting. इसका मतलब कि this part only includes acting, which means A intersection S complement intersection D complement. And why is that so? This is because this part contains the 10 people are taking part in neither singing nor dancing and they take part in acting only. So this is A intersection S complement intersection D complement. So let me just write it down in the answer box. A intersection S complement intersection D complement. Now let's move on to the next question. Question 24. P is the point -1 and 4 and Q is the point -3 -2. Find the coordinates of the midpoint of the line PQ. Now this is very simple. Midpoint का formula में पता है. The formula for midpoint is x1
plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2. So this is very simple. दोनों x के कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना है. p का x कोऑर्डिनेट है -1 प्लस q का x कोऑर्डिनेट है -3. दिस इज ओवर 2 कॉमा, अब मेरे पास y कोऑर्डिनेट है p का 4 और q का है -2 over 2. So this becomes -1 and -3. So this becomes -4. Let me just close the brackets and state it again here. So this is -4 divided by 2 comma 4 minus 2 is 2 over 2. So this becomes -4 over 2 is -2 comma +1. So this is -2 and +1. Now find the equation of the line perpendicular to PQ which passes through the point P. अब उसने हमें बता दिया कि जो हमें इक्वेशन बनानी लाइन की दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, विच मीन्स कि पी क्यू के ग्रेडियंट का को जब हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा और कोऑर्डिनेट्स हमें यूज़ करने हैं पॉइंट पी के बिकॉज द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट पी. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 and 4 और ग्रेडियंट अब मुझे पी क्यू का निकालना पड़ेगा. तो पी पॉइंट पी इज़ -1 and 4 and point Q is -3 and -2. So the gradient becomes 4 minus 2 y2 minus y1 over x2 minus x1. So this becomes 4 plus 2 is 6 and -1 plus 3 is 2. 2 1 से 2 and 2 3 are 6. तो मेरे पास ग्रेडियंट आया पी क्यू का +3. अब मुझे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है ताकि मेरे पास अपनी लाइन का ग्रेडियंट आए. So this becomes -1 over 3. This is the gradient of my line y for example. Okay, -1 over 3 is the gradient. Now अब मुझे equation of line में इसको apply करना है. So this is y2 minus y1 equals to m x2 minus x1. Okay, so this becomes y minus y coordinate is 4 is equals to gradient -1 over 3 और x कोऑर्डिनेट मेरे पास है -1. So this is -1. Now 3 goes on the left hand side. So this becomes 3y minus 4 3s are 12 is equals to -x x plus 1 and this becomes -1. Now 3y is equals to -x. The 12 moves on right hand side. So this becomes +12 and 12 minus 1 is 11. So this is +11. 3 moves on to the left hand side. So this is -1 over 3x plus 11 over 3. I hope everything is clear. So this is our final answer. Now let's move on to the next question. Let me just show you the answer perfectly. So now let's move on to the next question. Question 25. The table shows the times each of 110 students take to travel to school one day and complete the histogram to show this information. So we know that in order to complete the histogram we need 2 columns more. One is the frequency density and one is the class width. So let's first make both the columns, write down their values and then complete the histogram. So the first column would be for the class width, which is CW. And how do we find out the class width? By subtracting the upper class boundary from the lower class boundary. Dragged it till the end. 5 minus 0 is 5. So this is 5. 10 minus 5 is again 5. 20 minus 10 is equals to 10. And 40 minus 20 is equals to 20. Now we have to make a column for the frequency density. We all know the formula for frequency density. So frequency density is equals to the frequency divided by class width. So this is frequency density FT. Frequency is 30, class width is 5. 30 divided by 5 is equals to 6. And you can also see on the examiner has drawn the first histogram for us. The frequency density is 6. Now the second one, frequency 25 and class width 5. 25 divided by 5 is equals to 5. 35 divided by 10 is equals to 3.5.
Let's just make some columns more. And then the last one, frequency is 20, class width 20. 20 divided by 20 is equals to 1. So we have completed the class width column and the frequency density column. Now let's make the histogram. Now the first value for time is 0 to 5 and the value of frequency density is 6. Examiner has already drawn this histogram for us. The second one is 5 to 10 and the value of FD is 5. So let's draw it now. This is 5 to 10 and the value of FD is 5. So here is 5. Let's indicate it more brightly and then draw a straight line till 10. Now the next one. The next one is the time is 10 to 20 and the value of FD is 3.5. So this would be basically 10 to 20, that would be containing this part, and the value of FD is 3.5, which is here between the midway of 3 and 4. So this is between 10 and 20. Now draw a straight line till 20. The third column is also done. Now the last one, which is 20 to 40 and the value of FD is 1. So 20 to 40 basically represents this whole portion and the value of frequency density is 1. So this is 1. Now draw a straight line till 40. And now the last column is also done. So this is how the histogram is done and this is the procedure. First calculate the class width, then the frequency density, and then draw the histogram. So this is done. Now let's move on to the next question, which is the last one. Now question 26. In the diagram, OA is equals to A, OB is equals to 2B, and AB ratio BC is equals to 1:3. OBD is a straight line. Express AB in terms of A and B. Now this is very simple. We know how to break AB. Basically, AB is equals to OB minus OA. So this is very simple. The value for OB we have is OB is equals to 2B and OA is equals to A. So AB becomes 2B minus A. This was very simple. Now the next question. Part B, show that OC is equals to 8B minus 3A. In order to calculate OC, let's first make our equation. So AC is equals to OC minus OA. That's the general form. And in order to find OC, we need to shift OA to the left hand side. So this becomes OA plus AC, that makes OC. So this is basically the equation for finding OC. Now we have the value for OA, that is A, and we have to calculate the value of AC. अब AC की वैल्यू निकालने के लिए हम रेशो का इस्तेमाल करेंगे. Examiner has told us that AB ratio BC is 1/3. So basically AB represents one part and BC represents three parts. So if AB is representing one part and BC is representing three parts, so whole of the AC is representing how many parts? That is 3 plus 1. So the total parts that AC is representing is 4. So the parts AC is representing is equals to 4. Now we will use the ratio method. How? We know that, let me just shift it downwards a little bit. We know that AC is representing 4 parts and AB is representing 1 part. तो हमने AB की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी 2B माइनस ए. सो एक पार्ट पे AB की वैल्यू है 2B माइनस ए और AC के पास 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स पे AC की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज इक्वल्स टू अ वेरिएबल x. So now we will cross multiply both of them things. So this becomes x is equals to 4 multiplied by 2b minus a. So x becomes 8b minus 4a. This x is basically the value of AC. Now we will put this into our equation, which is OA plus AC, that makes OC. OA is A, AC is 8b minus 4a is equals to OC. So positive A and negative 4a, this becomes negative 3a minus 4a plus a.
So this becomes negative 3a plus 8b is equals to OC. Therefore, OC becomes 8b minus 3a. So this is how, using the ratio method, this part was to be solved. Now let's move on to the next part. Part C, AD is equals to KOC. Find the value of K. Now this is of 1 mark. So instead of using the non-zero vector and doing long calculations, just focus on one thing, that is the pattern of the figure. First, AD is equals to KOC, which means there is somewhere a relation between AD and OC. And how will we know that relation? By drawing a straight line from A to D. So let me just draw a straight line, and then you'll notice the pattern that becomes. And now when I do a straight line, the pattern that becomes is some form of a kite, which is this one, AD, then DO, OC, and notice whole of this thing. This whole thing becomes a kite. So basically ABD is similar to OBC, because you notice similar triangles, which is why there was a relation between AD and OC. The aspect and the property to be used in this part was the property of similar triangles. ABD is similar to OBC. And how do we know that? We notice that because of the kite shape. So in order to solve this, we will take the ratios of both of these triangles. First, one ratio is mandatory, that is AD and OC. So this would become AD over OC. Now अब हमें दो ऐसी लेंथ्स चूज करनी है जिनकी वैल्यूज हमें पता है. फॉर एग्जाम्पल, from the first triangle we can take AB because it is ABD, and from the second triangle we can take BC because it is OBC. So AB over BC. So this will become AB over BC. And we already know the ratio of AB over BC, that is 1 over 3. So now let's solve this in our part C section. AD over OC is equals to, let me just write it down. AD over OC is equals to AB over BC. So AD over OC is equals to 1 over 3. Okay, and if I move OC on that side, so this becomes, if we cross multiply both of these sides, so this becomes 3AD is equals to 1 OC, and when I move 3 onto the right hand side, so this becomes AD is equals to 1/3 of OC. And if I equate this with our equation, with our original equation, that was AD is equals to KOC. So the value of K becomes 1 over 3. So K is equals to 1/3. And this is our final answer using the property of similar triangles. And now this paper is completed and the whole paper is solved. I hope you liked this video and understood each and every question. If still there is any question unclear, you can ask me in the comment section and I will try to explain it there to the best of my efforts. So hit the subscribe button, hit the bell icon, and so that you get notified whenever I upload any new video. Thank you very much. Allah Hafiz.